इकोसिस्टम अवैध घुसपैठी, अवैध बांग्लादेशियों के बचाव में आया है और हेमंता बिस्वा शर्मा जी, जो असम के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको गालियां दे रहा है, उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। उनके ऊपर ना जाने किस प्रकार से टूटे हैं, क्योंकि उन्होंने घुसपैठी अवैध बांग्लादेशियों को मियाँ बोला है। अब वो खुद अवैध बांग्लादेशी अपने आप को मियाँ बोलते हैं, तो मियाँ को मियाँ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उन्होंने तो मियाँ कविता भी लिखी है। वो अपने आप को मियाँ बोलते, अगर उनको मियाँ बुरा लगता है तो वो अपने आप को मियाँ कहना छोड़ दे। और किसी और को अगर तकलीफ होती है तो सवाल तो ये बनता है कि हाई कोर्ट ने बोला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है घुसपैठियों की वजह से। ये मूल मुद्दा है, परंतु कांग्रेस इस मूल मुद्दे से भागना चाहती है। किस प्रकार से असम के कल्चर, आइडेंटिटी और जमीन पर हमला करवाने के लिए अवैध घुसपैठियों को बसाने का कुकर्म कांग्रेस ने किया है, उस पर बात नहीं करना चाहती है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर वो लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा को गाली गलौज कर रही है। उनको बताना चाहिए कि उनका स्टैंड इस विषय पर क्या है। सी टुडे when Hemanta Biswa Sarma ji has stated a very bitter truth, which even the courts have said that there is a demographic invasion taking place, which is destroying the identity, culture, and land of Assam, and it is being done by these illegal Bangladeshis. Then, rather than focus on this issue, Congress is attacking Hemanta Biswa Sarma for calling them Mia, but they themselves call themselves Mia. They are proud of calling themselves Mia. They write Mia Kavita. So if we don't call them Mia, what will we call them? But Congress party is such a Ghuspetia Bachao party. They love infiltrators. They hate Assam. They hate Assam's culture. Rahul Gandhi does not even wear the gamosa of Assam. So they have now all started abusing Hemanta Biswa Sarma, and they have said they will put them in jail. So imagine, they want to defend the illegals and they want to put an elected CM in jail for calling Mia Mia. High Court directs West Bengal to hand over border land to BSF by March. This is a tight slap on the face of the TMC government. TMC's agenda has changed from Ma Mati Manush to Babri Bachao, Balatkari Bhrashtachari Bachao, and Bhari Ghuspetia Bachao. And therefore, we have seen the manner in which, even though the entire Indo-Bangladesh border has been fenced, only 450 kilometers of Bengal part was remaining. And Bengal government, TMC government, was not handing over the land to the BSF and was thereby allowing the infiltrators. This is the same party which in 2005 opposed infiltrators. Today it has become the vote bank. So they put vote bank niti above Rashtra niti. They were not giving the land to the BSF. When the SIR started, they started opposing SIR. They opposed the detection, deletion, and deportation of these illegals. When Rohingyas are spoken of by the Supreme Court Chief Justice of India, Kalyan Banerjee opposes and abuses the Supreme Court. So it shows the Ghuspetia prem of TMC. Today it has been exposed, and this is a very big order in terms of national security. And once again, vote bank security is above national security. TMC has proven that. High Court directed West Bengal to hand over border land to BSF by March. देखिए, आज फिर से टीएमसी की सरकार को करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि वो लगातार वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए अपना घुसपैठिया प्रेम दिखाते हैं। किस प्रकार से माँ माटी मानुष नहीं, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी बचाओ, बाबरी बचाओ और भारी बचाओ इनका एजेंडा बन चुका है। इसका ये प्रमाण है, पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर फेंस हो चुका है, केवल बंगाल का पोर्शन बाकी है, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार जमीन नहीं दे रही थी। अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि टीएमसी की सरकार को कि इस टाइम बाउंड मैनर में बीएसएफ को जमीन देनी है। जब एसआईआर होता है और डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करने की बात होती है घुसपैठियों को, ये विरोध करते हैं। जब रोहिंग्याओं पर आदेश आता है, कल्याण बैनर्जी विरोध करते हैं। किस प्रकार से एक समय पर टीएमसी घुसपैठियां हटाने के पक्ष में थी 2005 में, और आज घुसपैठियों को वो अपना वोट बैंक मानती है, ये इसका प्रमाण है। और आज एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो फैसला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। Hamid Ansari made a statement regarding Mahmood Ghazni. देखिए, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध किया,
जिस प्रकार से नेहरू जी ने भी एक समय पर गजनी का महिमा मंडन किया था अपनी किताबों में, आज उन्हीं की भाषा बोलते हुए हामिद अंसारी बोलते हैं गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। इसीलिए वो कभी गजनवी और गजनी की वाइट वॉशिंग करते हैं, कभी वो अफजल गुरु याकूब को बेचारा मानते हैं। अभी शर्जील और उमर को बेल नहीं मिली तो उनको भटके हुए युवा बोल रहे थे, मासूम जोशीले युवा बोल रहे थे। तो ये दिखाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और हिंदू विरोधी आक्रांताओं के पक्ष में कांग्रेस बोलती है और सोमनाथ और हिंदुओं का विरोध करती है। द्वारा महमूद गजनी को लेकर एक और स्टेटमेंट दी गई है। This shows how the Congress ecosystem, it always eulogizes Hindu haters. Whoever attacks, does atrocities on Hindus, they are always subjected to this kind of whitewashing by the Congress's ecosystem. Now, Mr. Hamid Ansari says that Ghazni was not a cruel person. Ghazni was just an Indian. So, they want to whitewash the crimes that he has done. Imagine, they boycott Somnath Swabiman Parv. They are opposed to construction of Somnath. They eulogize Ghazni, and Mr. Nehru has also done that. Even today, the Congress ecosystem does that. They eulogize Aurangzeb, they eulogize Mughals, and even if the person is doing tukde tukde of India, whether it's Sharjeel, Yaqub, Afzal, or Umar, they stand in support of such elements. It shows the Hindu hatred they have in their mind. सेना का अपमान, संविधान का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी को ना सेना से मतलब है ना संविधान से। बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश के सबसे प्रमुख नेता और संविधान के सबसे प्रमुख जगहों पर आसीन व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हो, हमारे डिफेंस सर्विसेज के सारे जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स हो, वो सभी लोग जाते हैं। इसमें एलओपी का भी जाना एक प्रकार से ट्रेडिशनली अनिवार्य माना जाता है। इनविटेशन भी आया था, परंतु राहुल गांधी सेना का मखौल उड़ाते हैं, सिंदूर ऑपरेशन का मखौल उड़ाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मखौल उड़ाते हैं, और इसीलिए सेना और संविधान से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण पर्व पर भी वो नहीं गए। वैसे ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं है, उनको तो बंक मारने की आदत है। 15 अगस्त को बंक मारते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ओथ को बंक मारते हैं जब ओबीसी समाज से आने वाले वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण हुआ था। फिर सीजीआई हरियाणा से आते हैं, पहले सीजीआई हरियाणा से उनका शपथ ग्रहण बंक मारते हैं। तो उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों में बंक मारने की आदत है। सेना एंड संविधान का अपमान इज कांग्रेस पहचान। कांग्रेस विल क्राई अबाउट प्रोटोकॉल बट दे विल नॉट गो एंड फॉलो द प्रोटोकॉल व्हेन एलओपी is also traditionally expected to be part of the beating retreat ceremony, a ceremony where Prime Minister, President, Vice President, Service Chiefs, Defense Minister, everyone is present. Then Rahul Gandhi, because he feels his parivar is above Samvidhan and Sena, he bunks it. And this is the same Rahul Gandhi who insults the armed forces. Time and again he questions Operation Sindoor. Today when the armed forces were being celebrated, he has bunked the entire program. He bunks Vice President oath, he bunks the CGI oath, he bunks 15th August program. So it shows that for him, his Parivar Tantra is more important than Samvidhan Tantra, and insulting army is natural DNA of Rahul Gandhi.